Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Degwa from SSGM College. Today we have started our second subject, which would be depend on A group student is would be specialized auditing. As in our last lecture we have conducted our advanced auditing second chapter. Okay, so we have also completed specialized auditing second chapter also in our first chapter, sorry, not second chapter, but we have completed first chapter our on YouTube channel. Okay, and second chapter we have started on Google Form or Google Meet. Okay, so today we have I'm going to tell you in this subject how many chapters you have to study, and in this third semester the code of that subject. Okay, so first I will read the disclaimer of this video. This video is for education purpose only. No copyright infringement. This copyright belongs to its rightful owner. Credit goes to respective online video composers, teachers, teacher and institute and speakers, as well as video composers and singer. Okay, so this video is only for education purpose only. So in third semester you, for A group student, you have to study two subject. So first subject advanced auditing, that syllabus I have given you in our previous lectures, online lectures, and in this session we have discussed, or in this lecture we have discussed about syllabus of your fourth subject will for A group student will be specialized auditing. The code of specialized auditing will be 304. Whether you fill up your form, so you have to submit your, see first of all what kind of code will stand for which subject. Okay, for compulsory subject the code will be first 301 is for business finance, 302 for research and methodology for business, and 303 for specialized subject A group student. For accounting student the code will be 303, and for fourth subject of for specialized subject student will be 304, and that subject will be specialized auditing. Okay, so now we move to next slide. In next slide we have to study in this subject there will be four chapter you have to study in this semester. Okay, so first chapter we have to first study in this slide. The first chapter I have to shown to you. Okay, all of you just view on that chapter's name. First chapter will be audit under tax laws. Audit under tax law. According to syllabus, this is your first chapter. Okay, according to syllabus, but I am conducting as your first chapter will be internal audit. Okay, I have completed your first chapter as an internal audit, but according to syllabus your first chapter will be audit under tax laws. Audit under tax laws. Okay, in this chapter you have to study the tax audit under section 44AB of इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इस पॉइंट के अंतर्गत आपको फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आप क्या सीखोगे कि टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है कि हाँ ऑडिटिंग किस तरीके से करनी है, कि ऑडिटिंग किस पर्पस से करनी है. टैक्स लॉ करें आप तो बिजनेस और ऑडिटिंग तीनों फॉर्म्स में अगर आप कर रहे हो इनकम टैक्स लॉज में. अब इनकम टैक्स में आप लोगों को पता है कि कौन कौन से किन किन के ऊपर हम लोग टैक्स चार्जेबल करते हैं. दैट विल बी बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एनी काइंड्स ऑफ अदर फॉर्म ऑफ सैलरीज. ओके, सो इनका अंडर कितना परसेंट चार्जेस है, ये इनका सेल्स टर्नओवर कितना होना चाहिए, प्रोफेशन के ऊपर कितना परसेंटेज चार्ज है, और कितने आप टू प्रीवियस ऑडिट इनका अकाउंट्स करना है. तो ये हम किस में देखेंगे, टैक्स ऑडिट अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ
under section 44AB of according to Income Tax Act 1961. ओके, सो इसमें आप लोग टैक्स ऑडिट क्या देखोगे कि अलग अलग फॉर्म्स के जिनके टैक्स चार्जेबल है उनका रेट्स देखेंगे. ओके, second main points will be we have to study second main concept we have to study form 3CA. What is meant by form 3CA and what kind of format in the form CA. फॉर्म CA क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन करी जाती है, और फॉर्म CA और फॉर्म CB एंड फॉर्म CD ये अंडर अब जा पहले टाइमिंग पे वो टैक्स लॉ में चार्जेबल होते थे. इन प्रीवियस सिलेबस दे विल बी चार्ज अंडर वैट लॉ. ओके, बस now there has been a development of GST law, so this pattern. ओके, आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज के अंडरगत पहले हम लोग किसके ऊपर चार्ज करते थे, ऑडिट अंडर GST लॉ जो है अभी. तो ये फॉर्म्स 3CA फ्रॉम 3CB एंड 3CD पहले ऑडिट अंडर वैट लॉ में चार्ज होते थे. वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स में चार्ज होते थे. ये फॉर्म तीनों फॉर्म्स तीनों फॉर्म्स विल बी चार्ज अंडर वैट लॉ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस. बट अकॉर्डिंग टू 2019 syllabus they will be 3 forms will be charged under GST law. So there has been a changement. We have to discuss whether we have started this our chapter number first. Okay, so the third main concept will we have to study the steps to be taken by the auditor under GST laws. Okay, so स्पेशल ये जो स्टेप्स थे वो पहले स्टेप्स ऑफ ऑडिटर, जब वो ऑडिटर ऑडिटिंग करता है कि कौन कौन से स्टेप्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनी के क्या रिव्यू करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप्स उसको वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग, कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते थे. तो ये सब हम लोग पहले देखते थे, यानी कि ऑडिटर करता था व्हाट काइंड ऑफ स्टेप. बट इन अंडर मतलब अब्जा यानी कि ऑडिट अंडर किसके अंतर्गत होगी अब्जा ऑडिट. ओके, GST लॉस के अंतर्गत अब्जा ऑडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी हैव टू चेंज. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द टैक्स लॉस. ओके, द टैक्स लॉस. ओके, सो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. तो वो इनकम टैक्स अंडर है. फॉर्म्स 3CA जो चेंजमेंट हुआ है, पहले वैट लॉज में चार्जेबल होता था एंड देन दे हैव टू मेक ऑडिटिंग अंडर GST law. स्टेप्स अंडर है, स्टेप्स ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स हैव टू फॉलो बाय एन ऑडिटर वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिट. सो वो सारे स्टेप्स ऑडिटर को फॉलो अप करने पड़ेंगे वेदर दे हैव डूइंग ऑडिटिंग. और ऑडिट अंडर GST लॉ उसको करना पड़ेगा ऑडिटर को. दे हैव फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव डेवलप आफ्टर GST फॉर्म. ओके, सो GST ऑडिट प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा वेदर. ओके, सो फर्स्ट प्रीवियस टाइम्स में सिलेबस में वैट लॉज एक्सेस ऑडिट लॉ यानी कि फॉलो करना पड़ता था, बट नाउ दे हैव टू मेन फोकस ऑन GST. द GST फुल फॉर्म विल बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. So this is our first chapter. First of all, in this chapter you have to study the main 4 concepts. Okay, now we move forward to the next slide. In next slide we have to mention our chapter number 2 according to the syllabus will be internal audit. As you all of you know, we have completed our first chapter on my YouTube channel. All the videos of first chapter of the subject specialized auditing have been mentioned on my YouTube channel. So if you query regarding any kind of point concept related in this chapter, you have to watch all the videos which I have been published on my channels. Okay, so and make your revision on that notebook. Okay, so in this chapter we have to study the nature, scope, purpose of internal audit, why internal audit is required for a company who have making an auditing. Okay, so these kinds of scope, nature or purpose which have to require to maintaining or preparing an internal audit. Okay,
So review of internal control, the auditor must have review of internal control, what kind of reviews they have to follow, whether they have use or making an internal control system. Okay, areas of internal audit, what kinds of area we have to study. We have also study how many areas have been developed of internal control. ओके, परचेज, सेल, कैश, बैंक ट्रांजेक्शन, इनके ऊपर हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन. वी हैव टू स्टडी व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स वी हैव मेंटेनिंग इन अवर डे टू डे प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस और इंटरनल ऑडिट. how many parts or which part have play on whether we have doing our conducting our auditing for a particular client or a business. ओके, सो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ऑडिटर को क्या क्या मेंशन करना है, डिटेल्स. ऑडिटर जब जिस कंपनी अपने क्लाइंट की डिटेल्स मेंशन करेगा कि हाँ उसने क्लाइंट की अपनी ये सब ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स में ये हम सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग व्यू करेंगे. ओके, so this is our second chapter. So we have to study in this concept of in our second chapter. Okay, so also we have completed this chapter on YouTube channel. Okay, so now we move forward to our next slide. In next slide the chapter number 3 will be mentioned. Okay, so I have started second chapter as an audit of banks. In our last Google Meet lectures we have discussed the introduction, meaning and approaches of audit of banks. Okay, we have also discussed what kinds of approaches we have to study, and many students have present on Google Meet lecture also, but we have to take revision also in our YouTube. In my YouTube channel we have also studied all aspects of this chapter. Okay, so this is our third chapter. We have to study in this chapter how many concepts we have to study. We have to study this concept which have been shown in your this slide. Okay, so first we have to study the slide features of enactment affecting the banks. ओके, जब किसी भी बैंक की ऑडिटिंग करते हैं तो उनको क्या क्या रूल्स, कौन कौन से फीचर्स रहेंगे, क्या फ़ायदेमंद रहेंगे, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे जो ऑडिटर को फ़ायदेमंद रहेंगे क्या. ओके, और बैंक्स की जब ऑडिटिंग करते हैं हम लोग तो उसके लिए बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो बैंक ऑडिट किसके अंतर्गत होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के. तो स्लाइड फीचर्स में ये सारी रिक्वायरमेंट देखी जाती है. रिजर्व फंड कितना है, फंड कितना है का बैंक के पास, कैश रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये सारे क्या है, स्लाइड फीचर्स ऑफ audit which have to affect the banks. Okay, so in this chapter we have also studied the introduction, meaning and concept approaches of a bank audit. Okay, so and second aspect bank audit, its approaches, steps in bank audit. Okay, bank audits के अंदर हमने approaches, we have also completed approaches of bank audit. 3 to 4 approaches we have completed in our lectures, Google Meet lectures. Okay, so steps we have also have follow, whether we have studying in this chapter in a detail way, this all concept we have studied, or we view all the details explanation which have been given in this chapter. This is only the concepts which have to study, whether our lecture of this chapter will be conducted. Okay, so second main concept of this we have to study in this chapter will be bank audit and its approaches, steps in banks audit. Okay, and third चेकिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. ओके, बैंक्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं. जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा बैंक की तो ये सारी चीज़ें उसको रिव्यू करनी पड़ेगी. ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट security of profit and loss items. So whether have auditor making and financial statements of banks, they have to focus on profit and loss items which have mentioned in your profit and loss account or not. Okay, then
फोर्थ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक्स के ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक्स किसके अंतर्गत प्रिपेयर रहेगी, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे जो ऑडिटर को फॉलो करने पड़ेंगे जब वो बैंक ऑडिट करती, क्या बैंक ऑडिट का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है एज़ कम्पेटिव टू रेगुलर ऑडिट, और उन्हें क्या क्या चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा, और क्या क्या ऑडिट ऑफ बैंक्स की यानी कि कौन कौन सी इन केस जब नेशनलाइज बैंक का होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का होता है और गवर्नमेंट बैंक्स का होता है तो उनका किस बेसिस पे उनकी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर जाती है, उसके अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन हम देखेंगे। और उसके अंतर्गत क्या ऑडिटर ने मेंशन करा है, क्या ट्रांजैक्शंस का नोटिसफाई करा है, ये सब चीज़ें वी हैव टू स्टडी इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ banks. Okay, we have to main focus on long form of audit report or short form of audit report. Long form of audit report we have to main focus on that kind of RBI have provide some kinds of guidelines in history and what kind of questionnaire or format of long form of audit report we have to focus in this chapter. Okay, this is the concepts which we have to study in our third chapter, sorry, audit of banks according to the syllabus. But we now started audit of bank as in our second chapter. Okay, now we move forward to our next slide. In next slide, the chapter number of fourth of specialized auditing have been mentioned. Okay, so in this chapter you have to study that सहकारी सोसाइटी जो संस्था है वो किस तरीके से ऑडिटिंग करती है, और अगर वो यानी कि एक आधी यानी कि महाराष्ट्र में हो रहे हैं तो कौन कौन से प्रोविजंस उनको फॉलो अप करने पड़ेंगे, कौन के एक्ट के थ्रू वो ऑडिट करेंगे, कौन से एक्ट के थ्रू वर्ड्स करेंगे, कौन से ईयर में उनका इनेक्टमेंट हुआ है। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी द सहकारी संस्था की ऑडिटिंग करेंगे। ओके, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिंग बैंक्स। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव। सो उन लोगों के प्रोविजन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव के प्रोविजंस क्या हैं, क्या क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंतर्गत वो अपनी ऑडिटिंग करते हैं, और उनका टाइम पीरियड क्या है। तो ये सब हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। ओके, और वो रजिस्टर्ड कंपनी कैसे हो रही है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके ओके, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज सोसाइटीज एक्ट 2013 एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2022। ओके, तो सोसाइटी एक्ट 2013 के अंतर्गत हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं, और मल्टी स्टेट यानी कि 2 स्टेट्स का मेल जो लोग के वो यानी कि ऑडिटिंग एक्ट 2002 वर्ड्स के थ्रू क्या क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप करने पड़ेंगे, क्या क्या डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सपेक्ट वी हैव टू मेंशन। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन कौन से फीचर्स नए हैं अगर हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव अदर बैंक्स की करते हैं, कंपनी की करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स की ऑडिटिंग कर रहे हैं, सोल प्रॉपर्टीज। तो ईच एंड एवरी रूल्स एंड फीचर्स सबके अलग अलग होंगे। ओके, सबके लिए फ़ायदा अलग अलग। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिटिंग किस तरीके से होती है, उनका क्या फ़ायदा है, क्या उनको मेन मोटिव है और किस पद्धति से की जाती है, तो सबका ऑडिटिंग करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑडिटिंग का नेचर सेम रहेगा। यस, ऑडिटिंग नेचर और उद्देश्य सेम रहता है, बस जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है और उसके टूवर्ड्स ऑडिटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो वी हैव ऑल्सो स्टडी ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, सैलरी अर्नर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हाँ, अब हम लोग कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटी की कर रहे हैं, तो सहकारी सोसाइटी विविध प्रकार की होती हैं। सहकारी सोसाइटी एक प्रकार की नहीं होती, विविध प्रकार की होती हैं। जैसे कोऑपरेटिव अगर है कंज्यूमर स्टोर, तो उसकी भी ऑडिटिंग हम लोग इस चैप्टर में उस पॉइंट्स पे भी हम लोग फोकस करेंगे कि हम देखेंगे कि कंज्यूमर स्टोर्स की ऑडिटिंग किस तरीके से होती है। सैलरी अर्नर जो है यानी कि कोऑपरेटिव के सोसाइटी के थ्रू सैलरी अर्न करते हैं, उनकी ऑडिटिंग किस तरीके से होती है। ओके, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, तो यानी कि हाउसिंग मतलब घर की जो यानी कि घर के जो यानी कि रहते हैं जो हाउसिंग सोसाइटी, उनके अंतर्गत किस तरीके से। और अर्बन
क्रेडिट सोसाइटी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से सोसाइटीज़ के जो अर्बन जो है ना रूरल एरिया में नहीं स्थित रहती, जो शहर में स्थित रहती हैं, उनकी ऑडिटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सारी चीज़ों पे जो सहकारी हैं, कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, जैसे कि सैलरी अर्नर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जो शहर में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनका किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो किस तरीके से अपनी ऑडिटिंग करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी ऑल काइंड्स ऑफ 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग ऑफ दिस 4 natures of cooperative societies, and what kinds of laws applicable to that society, and what kinds of features of that society, and how many steps and how they have to register, and what kind of procedure they have follow, whether they have making an auditing। ओके, सो ये जो सारे फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स के हम स्टडी करेंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा अंडर, और इनके मेंबरशिप किस तरीके से वर्क करेंगी, और इनके प्रॉफिट्स कैसे हैं, कि इन्होंने उधार लिया है तो बोरोविंग्स कितनी है, शेयर होल्डिंग कितनी है। तो इन सब की अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म्स के रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, प्रोसीजर क्या है, तो अलग अलग रहेगा। वी हैव टू स्टडी ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल वे। एंड लास्ट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा, कि हाँ नेम्स, रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और प्रोविजन यानी कि क्या है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और ऑडिटर हैव टू फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ लेगेसीज, ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट्स, and view all kinds of auditing aspects of that chapter. So audit, whether the auditor have to prepare an audit report, they have follow all kinds of steps, rules and regulation, and related to the client or related to the business or related to the society, whether they have making an auditing of each and every kind of aspects. So they have to follow all kinds of contents, whether they have maintaining audit report of cooperative society। तो उसे ऑडिटर जब रिपोर्ट करेगा ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे हैव टू व्यू ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम पार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग प्रोसेस ऑफ ऑडिट, एंड इन ऑडिट रिपोर्ट दे हैव टू मेंशन ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, एंड दे हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स विच दे हैव टू मेंशन इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट्स के अंतर्गत उसे क्या क्या मेंशन करना है ऑडिटर को, जस्ट लाइक टाइटल, एड्रेस, स्कोप पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ, ओपिनियंस, सिग्नेचर्स, ऑडिट एड्रेस, ऑडिटर एड्रेस, डेट ऑफ रिपोर्ट, स्पेशल पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स ऑडिटर को और ये सारी चीज़ें ऑडिटर को मेंशन करनी पड़ेगी, वेदर दे हैव मेंटेनिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो दिस इज अवर 4th चैप्टर ऑफ specialized auditing। Okay, so you have to study this 4th chapter in this 3rd semester। Okay, so first chapter audit under tax laws, second chapter internal audit, third chapter audit of banks, fourth chapter audit of cooperative societies। Okay, so you have to study all kinds of chapter in this 3rd semester and their concept in detail। Okay, so we have completed first chapter in on our ways, so we have completed second chapter according to syllabus, and also we have started audit of banks in a Google lectures, we have Google Meet, we have also taken some lectures on Google Meet, and also I have published all videos from starting to ending of this chapter on YouTube। Okay, so this is our 4th chapter, you have to study in this chapter। So thanking you to all of you students who listening to me, and okay, so you have to notification, press on notification, so each and every time whether I have published my lectures on that time you have notify that lecture। Okay, whether you click on notification button, okay, directly
that details have been mentioned on your YouTube. Okay, and mention your details on comment box, like this video, subscribe my channel, and mention your details in comment box. Okay, so thank you to all of you students.